Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I'll discuss about various aspects of endoplasmic reticulum under following headings. First one is the endoplasmic reticulum is structurally and functionally diverse. After that, we come to the signal sequences were first discovered in proteins imported into rough endoplasmic reticulum. Next one is the signal recognition particle, that is SRP, directs endoplasmic reticulum signal sequences to a specific receptor in the rough endoplasmic reticulum membrane. Next one is the polypeptide chain passes through an aqueous pore in the translocator, and then translocation across the endoplasmic reticulum does not always require ongoing polypeptide chain elongation, and after that in single pass transmembrane proteins a single internal ER signal sequences remains in the lipid bilayer as a membrane spanning alpha helix, whereas in multi-pass transmembrane proteins combination of start transfer and stop transfer signals determine their topology. Translocated polypeptide chains fold and assemble in the lumen of rough endoplasmic reticulum, and most proteins synthesized in the rough endoplasmic reticulum are glycosylated by the addition of common N-linked oligosaccharide. Oligosaccharides are used as tag to mark the state of protein folding. Next one is the improperly folded proteins are exported from the endoplasmic reticulum itself and degraded in the cytosol. After that, we will come to the misfolded proteins in the endoplasmic reticulum activate an unfolded protein response, and then some membrane proteins acquire a covalently attached glycosyl phosphatidyl एंकर, दैट इज GPI एंकर, और इस एंकर का यूज होता है बायो सिग्नलिंग प्रोसेसेस में. एंड द लास्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम assembles most lipid bilayers. So these are the subheadings under endoplasmic reticulum. So we will discuss one by one in detail, but before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, in plant microbe interaction. I have qualified CSI UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national entrance level exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now start the lecture. It starts with the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है. इन यूकैरियोटिक सेल्स काफी सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. मीन्स यूकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय टू इंपॉर्टेंट फीचर्स. फर्स्ट वन इज द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो फर्स्ट वन इज द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इस चीज के बारे में और इसके बारे में पढ़ेंगे हम जब न्यूक्लियस के टॉपिक पर आएंगे. एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स. यूकैरियोटिक सेल्स में काफी सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे फंगल सेल्स हो. सो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज वेल एज मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स. मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स बहुत सारे होते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल एक्सेट्रा. सो जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. सिर्फ एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, दैट इज राइबोसोम,
जो कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है. सो राइबोसोम इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70s. सो यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स बहुत सारे होते हैं एंड सम ऑफ द मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल फंक्शन करते हैं इन ए इंटरकनेक्टेड वे. सो आपस में कनेक्टेड होते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर बात करें तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में टोटल 4 ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज द endoplasmic reticulum, second one is the Golgi complex, third one is the lysosome and fourth one is the vacuole. So endomembrane system में ये 4 organelles आते हैं. First one is the endoplasmic reticulum, second one is the Golgi complex, third one is the lysosome and fourth one is the vacuole. Chloroplast, mitochondria, peroxisome, they are not a component या part of endomembrane system. क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है इन 4 ऑर्गेनल्स के साथ. सो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम के जो फंक्शंस होते हैं वो इन 4 ऑर्गेनल के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो अभी हम बात करेंगे ओनली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं. एक एवरेज एनिमल सेल की अगर बात करें तो एवरेज एनिमल सेल में जितने भी उनका टोटल मेम्ब्रेन होता है उनका मोर देन 50% मेम्ब्रेन जो होता है वो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो इट इज ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं एंड थ्रू और साइटोसोल एक्सटेंड होते हैं. ट्यूबुल्स एंड सैक्स आर इंटरकनेक्टेड एंड देयर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो ट्यूबुल्स एंड सैक्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं. Endoplasmic reticulum and nuclear membrane forms a continuous sheet enclosing a single internal space और उस single internal space को बोलते हैं ER lumen, ER lumen और ER cisternal space. और ER lumen की अगर बात करें तो टोटल सेल वॉल्यूम का मोर देन 10% जो वॉल्यूम होता है वो ER lumen का होता है. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो वो साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज द ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड सेकंड वन इज द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट. Luminal compartment is the basically ER lumen या ER cisternal space जो कि total cell volume का more than 10% occupy करता है. This figure represents the fluorescent micrograph of endoplasmic reticulum and as you see that these are present as network like structures. फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. फर्स्ट वन इज द लिपिड बायोसिंथेसिस, सेकंड वन इज द प्रोटीन बायोसिंथेसिस एंड थर्ड वन इज द इट आल्सो सर्व्स एज इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन स्टोरेज. This calcium ion used in many signaling processes and the best example is muscle contraction that we will see in later section. Endoplasmic reticulum is the site of production of all transmembrane proteins and lipids for most of the cell's organelles including endoplasmic reticulum itself, Golgi apparatus, lysosomes, endosomes, secretory vesicles as well as plasma membrane. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की अगर बात करें इट ऑल्सो मेक्स मोस्ट ऑफ द लिपिड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन. सो माइटोकॉन्ड्रियल एंड पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन की जो लिपिड्स होते हैं वो मोस्टली बनते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन ऑल्सो मेक्स मोस्ट ऑफ द लिपिड्स फॉर माइटोकॉन्ड्रियल एंड पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन्स.
इनके अलावा ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रोटीन्स जो कि सिक्रीटेड होता है सेल के बाहर, प्लस दोज डेस्टिन्ड फॉर ल्यूमेन ऑफ ईआर, गोल्गी अपरेटस एंड लाइसोसोम्स, वो भी इनिशियली डिलीवर्ड होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में बाई ईआर सिग्नल सीक्वेंस। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER से रिप्रेजेंट करते हैं। रफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनके मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं एंड राइबोसोम की अटैचमेंट की वजह से ही उनका सरफेस रफ या ग्रैन्युलर दिखता है, इसलिए उनको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सेल्स में अगर प्रोटीन ट्रांसलोकेशन की बात करें तो सेल्स में प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन दो तरह से होते हैं। फर्स्ट वन इज द को ट्रांसलेशनल प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज द पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस। सो दिस फिगर रिप्रेजेंट्स को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन एंड दिस रिप्रेजेंट्स पोस्ट ट्रांसलोकेशनल ट्रांसलोकेशन। को ट्रांसलोकेशनल ट्रांसलोकेशन की अगर बात करें तो इस प्रोसेस में क्या होता है, को ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन दोनों साथ साथ होता है। और ये कैसे होता है? जब यहाँ इस कंडीशन में राइबोसोम जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, जो राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करता है, वो राइबोसोम डायरेक्टली अटैच हो जाता है किससे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से। और ये जो सिंथेसाइज करता है पॉलीपेप्टाइड चेन, उनको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसलोकेट करते हैं और साथ साथ ट्रांसलोकेशन भी होता है एंड ट्रांसलेशन भी होता है, इसलिए इनको को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जबकि पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की अगर बात करें तो साइटोसोल में कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस होती है एंड आफ्टर कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन दे इंटर इन द ऑर्गेनल्स। सो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की बात करें तो ये बेसिकली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में होता है, जबकि पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड पेरोक्सिसोम के केस में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन को ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल translocation. So these are the pictures of rough endoplasmic reticulum and these are the figure of smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum के membrane की अगर बात करें तो इन पे राइबोसोम्स स्टडेड हैं जो कि इनका रफ अपीयरेंस देते हैं and rough endoplasmic reticulum is continuation with the membrane of आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो दे लाइक राइबोसोम्स। So regions of endoplasmic reticulum that lack bond ribosomes are called smooth endoplasmic reticulum और smooth ER या फिर SER भी बोलते हैं। Most cells have scanty regions of smooth endoplasmic reticulum and endoplasmic reticulum is partly smooth and partly rough। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह एरिया जिससे वेसिकल्स वर्ड ऑफ होते हैं, जिसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं, और वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी एपरेटस तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रांजिशनल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सो ट्रांजिशनल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्पेशलाइज्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि बेसिकली स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं और गोल्गी एपरेटस तक जाते हैं, जिसमें काफी सारे न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं।
कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अबंडेंट एंड कुछ एडिशनल फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल्स वैसा सेल्स जो स्पेशलाइज्ड होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में उनमें एक्सपैंडेड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये एक्सपैंडेड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है उस पे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए? जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है और मॉडिफाई करता है इनको फॉर टू मेक द हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल्स वैसा सेल्स जो स्टेरॉइड हार्मोन को बनाता है, किससे? फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल से। सो वैसा सेल जो कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन बनाता है एंड देयर आर इंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। सो सारे के सारे इंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? वो प्रेजेंट होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेन सेल टाइप इन लीवर, और जो मेन सेल होता है लीवर का दैट इज हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स में भी एबंडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। हिपैटोसाइट्स की अगर बात करें तो इट इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स। लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स क्या होते हैं? लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स लिपिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लिपिड को कैरी करता है। क्या करता है? बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लिपिड कैरी करता है। इस लाइपोप्रोटीन पार्टिकल का क्या इंपॉर्टेंस है? लाइपोप्रोटीन पार्टिकल का जो लिपिड कंपोनेंट है, लिपिड कंपोनेंट को सिंथेसाइज करने का जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइपोप्रोटीन पार्टिकल के लिपिड कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करता है। दूसरा काम क्या है? दूसरा लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का जो एंजाइम्स होते हैं वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज द मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेस, वेरियस हार्मफुल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो एंजाइम होता है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। एंड द मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय साइटोक्रोम P450 family of enzyme. Which enzyme? It is cytochrome P450 family of enzyme. Cytochrome P450 family of enzyme की अगर बात करें तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस कैटालाइज करता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है एंड वाटर सॉल्युबल होने के बाद वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन होता है उस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं थ्रू ट्रांसलोकेटर जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में ट्रांसलोकेट करते हैं। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे इनफ स्पेस नहीं होते हैं जो कि उस एंजाइम को हाउस कर सकते हैं, जो उस एंजाइम को नेसेसरी एंजाइम को एकोमोडेट कर सकते हैं। सो मेजर पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन इन हिपैटोसाइट्स नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो अभी तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो फंक्शन डिस्कस किए। फर्स्ट वन इज द प्रोटीन बायोसिंथेसिस, सेकंड वन इज द लिपिड बायोसिंथेसिस। अनदर क्रूशियल इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द सिक्वेस्टरिंग ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द साइटोसोल, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डिफरेंट बायोसिग्नलिंग प्रोसेसेस एज वेल एज मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन का साइटोसोल में रिलीज होना एंड इट्स सब्सिक्वेंट अपटेक अकर्स इन मेनी रिस्पॉन्सेस टू एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स। कैल्शियम आयन पंप होता है जो कि साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन को ट्रांसपोर्ट करता है।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कैल्शियम आयन के स्टोरेज को फैसिलिटेट करता है। साइटोसोल से कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ पे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, और ल्यूमेन में कैल्शियम आयन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कैल्शियम आयन के स्टोरेज को फैसिलिटेट करते हैं। कुछ सेल टाइप में या परहैप्स इन मोस्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो कैल्शियम आयन के स्टोरेज के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स की अगर बात करें, मसल सेल्स में मॉडिफाइड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। उस मॉडिफाइड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मॉडिफाइड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉट रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये मसल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज मॉडिफाइड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रिलीज ऑफ calcium ion by sarcoplasmic reticulum trigger myofibril contraction, whereas reuptake of calcium ion by sarcoplasmic reticulum trigger relaxation. So release and reuptake of calcium ion by sarcoplasmic reticulum क्या करता है? myofibril को ट्रिगर करता है contraction and relaxation के लिए respectively during each round of muscle contraction. So to study the function and biochemistry of endoplasmic reticulum, it is necessary to isolate the endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum से purified rough and smooth microsomes से किस तरह isolate करते हैं? आइसोलेशन के लिए जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज होमोजेनाइजेशन ऑफ टिश्यू और सेल्स। होमोजेनाइजेशन से हम टिश्यू और सेल्स को डिसरप्ट करते हैं जिससे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होते हैं और वो फ्रैगमेंट्स फिर से रीसील होके वो माइक्रोजोम्स बनाते हैं। माइक्रोजोम्स क्या है? क्लोज्ड वेसिकल्स जिनका डायमीटर 100 to 200 नैनोमीटर होता है। सो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप इज द होमोजेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज और सेल्स, जिसके थ्रू हम सेल्स एंड टिश्यू को डिसरप्ट करते हैं एंड जब सेल्स एंड टिश्यू को डिसरप्ट करते हैं तो उससे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बट वो फ्रैगमेंट्स फिर से रीशील होके एक क्लोज्ड वेसिकल्स बनाते हैं ऑफ 100 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर और उस क्लोज्ड वेसिकल्स को बोलते हैं क्या? माइक्रोजोम्स। These are the thin section of electron micrograph of purified rough endoplasmic reticulum fraction shows the abundance of ribosomes studied. So these are the figures that shows the ribosomes are studied on the membrane of rough endoplasmic reticulum vesicles. Microsomes की अगर बात करें they are relatively easy to purify as compared to complete endoplasmic reticulum. So ये है rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum and these are smooth endoplasmic reticulum. जब हम इनको होमोजेनाइज करते हैं तो काफी सारे वेसिकल्स बनते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स को रफ माइक्रोजोम्स बोलते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माइक्रोजोम्स को स्मूथ माइक्रोजोम्स बोलते हैं। अब इसको सेपरेट कैसे करते हैं? इसको सेपरेट करते हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन में जो मीडिया यूज करते हैं दैट इज ग्रेडियंट ऑफ इंक्रीजिंग सुक्रोज कंसंट्रेशन। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम सुक्रोज का कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो इट इज ए ग्रेडियंट ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन। जब हम इन माइक्रोजोम्स को इन सुक्रोज सॉल्यूशन में सुक्रोज ग्रेडियंट सॉल्यूशन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो दो अलग अलग जगह पे माइक्रोजोम्स हमें दिखते हैं। जो बॉटम के माइक्रोजोम्स हैं दैट इज रफ माइक्रोजोम्स, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि इनके मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स स्टार्टेड हैं एंड दे स्टॉप सेडिमेंटिंग एंड फ्लोट एट हायर सुक्रोज कंसंट्रेशन, क्योंकि टॉप टू बॉटम सुक्रोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। सो जहां पे इनका डेंसिटी मैच करता है वहां पे ये फ्लोट होने लगते हैं। नाउ
दिस वन इज द स्मूथ माइक्रोजोम्स। स्मूथ माइक्रोजोम्स की डेंसिटी कम होती है क्योंकि इनके मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स स्टडेड नहीं होते हैं। सो दे स्टॉप सेडिमेंटिंग एट लो सुक्रोज कंसंट्रेशन और वहां पे ये फ्लोट होना शुरू कर देते हैं। सो स्मूथ माइक्रोजोम्स फ्लोट ऑन द लो डेंसिटी सुक्रोज सॉल्यूशन, जबकि रफ माइक्रोजोम्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं हाई डेंसिटी सुक्रोज सॉल्यूशंस। Now many vesicles similar in size to rough microsomes but lacking attached ribosomes are also found in same cell homogenate, जिसको बोलते हैं smooth microsomes। Smooth microsomes derived in part from a smooth portion of endoplasmic reticulum and in part from vesiculated fragment of plasma membrane, Golgi apparatus, endosomes, mitochondria, and the ratio depends upon the type of tissue। So whereas rough microsomes जो होते हैं वो clearly derived from rough portion of endoplasmic reticulum, but it is not easy to determine the origin of smooth microsomes क्योंकि smooth microsomes plasma membrane, Golgi apparatus, endosomes, mitochondria ये सारे fragments से भी आते हैं। Smooth microsomes prepared from liver और muscle cells is an exception क्योंकि liver and muscle cells में smooth endoplasmic reticulum का proportion बहुत ज्यादा होता है। So because of unusually large quantities of smooth endoplasmic reticulum and sarcoplasmic reticulum respectively, most of the smooth microsomes in homogenates of the tissue are derived from smooth endoplasmic reticulum. Ribosomes attached on the rough microsomes make them more dense than smooth microsomes. As a result, we can use equilibrium centrifugation to separate the rough and smooth microsomes. So microsomes have been invaluable in elucidating the molecular aspects of endoplasmic reticulum function. So this is all about structure and function of endoplasmic reticulum, and in my next lecture I'll discuss about signal hypothesis। So किस तरह से ER सिग्नल गाइड करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आने में।